Hello dear student, I am Varun Kumar Nishad, the teacher of chemistry from LPM Public School, Bola Bazar, Gorakhpur, and in this video we will talk about the relative atomic mass of an atom, how we calculate the mass of an atom. So before starting that, in previous video we will talk about what is the reference atom through which we compare the mass of an atom. So we will take the C12 atom, C12 isotopes of carbon atom, and through which we compare the mass of another atom. So in our periodic table there is a 118 elements are given, are discovered, and through which this process we will calculate the mass of relative atoms of an element. So, and one atomic mass unit which is equal to one unified mass, one C12 atom is divided by 12. The absolute mass of one C12 atom is 1.9924 into 10 to the power minus 23 gram, and hence one unified mass is equal to 1.9924 into 10 to the power minus 23 is divided by 12 gram, and we will find the 1.66 into 10 to the power minus 24 gram, and on that basis the average mass of one atom of an element is divided by 1/12 part of mass of one C12 atoms. So तो C12 atoms की जो वैल्यू है वो कैलकुलेटेड है, that is 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. The average mass of one atom of an element is divided by 1/12 part of mass of C12 atom, which is 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. So we have calculate, suppose you should calculate the value of hydrogen atom. What is the mass of one hydrogen atom? So the mass of hydrogen atom, so I will write here the mass of hydrogen atom is 1.67 into 10 to the power minus 24 gram. It is calculated by the comparison of C12 of one atomic mass, which value is 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. So this is the value of one unified mass. ये एक एटम का एक यूनिफाइड मास को अगर ग्राम में कंपैरिजन करें तो वैल्यू होगी 1.66 into the 10 to the power minus 24 ग्राम, और हाइड्रोजन की वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो 1.67 into the 10 to the power minus 24 ग्राम होगी. इन दिस वे अगर हम कंपैरिजन करें मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट होता है मैग्नीशियम 24. मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 होता है. अगर हम एक मैग्नीशियम एलिमेंट का एक एटम का वेट जो होता है, एटॉमिक मास होता है, वो 24 होता है. अगर उस एटॉमिक मास से 24, अगर हम वो एक एटॉमिक एटॉमिक मास of magnesium element is 24 unified mass.
So it is a more heavier or 24 times heavier of 1.66 into 10 to the power minus 24 gram of C12 one atomic mass. So ये जो मैग्नीशियम का एक एटम का एटॉमिक मास जो 24 यूनिफाइड मास है वो कार्बन C12 के 1.66 into 10 to the power 24 ग्राम के से हैवियर होगा वो C12 of one atomic mass. कार्बन 12 के एक एटॉमिक मास के से ये हैवियर होगा. It is a heavier to 1.66 into the 10 to the power minus 24 gram of C12 of one atomic mass. कार्बन 12 के एक एटम के मास के इतना ये 24 टाइम हैवियर होगा. किसका मास? मैग्नीशियम का एक एटम का एटॉमिक मास जो है उससे जो कार्बन के एटॉमिक मास है 24 टाइम हैवियर होगा. तो ये इसका मीन्स ये है कि जो मैग्नीशियम एलिमेंट के एक एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा? 24 यूनिफाइड मास. और यहां कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का कितना होता है? C12 ये 98% नेचर में पाया जाता है. इसलिए जो है इसी एसिड को हम रेफरेंस पे करते हैं. तो C12 का एक एटम का मास होगा 1.66 एक रेफरेंस के तरीके से लेते हैं. तो इस एक एटम का जो वेट होगा वो 12 यूनिफाइड मास होगा. और वो 12 यूनिफाइड मास C12 के 1.66 into the 10 to the power minus 24 ग्राम के से हैवियर होगा. कितने टाइम हैवियर होगा? 12 टाइम हैवियर होगा. So in this way we are calculate our relative atomic mass of an element of an atom. So and the next topic is how do atoms exist? Our next topic is how do atoms exist? How do atoms exist? So, how do atoms exist? एटम्स कैसे स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं? तो एटम यूनिवर्स इन द यूनिवर्स देयर इज अ डिस्कवरी ऑफ 180 elements and you know that elements are each elements are made up of each elements are made up of same kind of element, same kind of atoms. So दो ये जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं. तो मैक्सिमम एटम्स प्रेजेंट हैं. वो एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं इस हेडिंग में हम डिस्कस करेंगे. सो एटम्स आर एग्जिस्ट इन टू वेज. फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड. एटम जो है वो दो तरह से एग्जिस्ट करते हैं. पहला ये कि इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड एंड दूसरा इन द फॉर्म ऑफ
अब ये कितने टाइप के हो जाएंगे आयंस? इट इज टू टाइप्स, पॉजिटिव आयंस एंड इट इज अ नेगेटिव आयंस. कंपाउंड्स एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ एसिड, बेस, दूसरा सॉल्ट एंड तीसरा न्यूट्रल. न्यूट्रल का एक one of the most important example which is our H2O molecule. So these are the how do atoms are exist? Atoms are exist in a two ways, which is first is compound and second is ions. Atom जो है स्टूडेंट दो two ways में, two types में, two ways में, two states में exist करते हैं यूनिवर्स में, नेचर में. तो पहला कंपाउंड और दूसरा आयंस. आयंस में जो एटम होंगे वो चार्ज के फॉर्म में होंगे. सो पहले डिस्कस करने से पहले कंपाउंड को देखते हैं. तो कंपाउंड कैसे होते हैं? पहला कंपाउंड होगा एसिड के फॉर्म में होगा, दूसरा बेस के फॉर्म में होगा, तीसरा सॉल्ट के फॉर्म में होगा और चौथा न्यूट्रल के फॉर्म में होगा. न्यूट्रल के फॉर्म में होगा. तो स्टूडेंट कंपाउंड जो है एटम जो है दो तरीके से एग्जिस्ट करता है नेचर में. पहला कंपाउंड, दूसरा आयंस. तो अगर एसिड की बात करें तो एग्जांपल होगा. सो स्टूडेंट एसिड की बात करें तो एसिड का एग्जांपल क्या होगा? एसिड इज अ HCl, H2SO4, H2SO4. तो ये होता है स्टूडेंट एसिड. और बेस की बात करें तो एसिड हो गया HCl हमारा, H2SO4 हो गया बेस, NaOH, दूसरा NaOH, तीसरा KOH, ये हमारे बेस हैं. सॉल्ट की बात करें तो NaCl एंड K2SO4, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, ये हमारा सॉल्ट हो गया. न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है. तो ये कैसे बना है? HCl जो बना है, HCl की अगर बात करेंगे, HCl एक एसिड है. तो HCl बना कैसे है? HCl बना है हाइड्रोजन एटम से और क्लोरीन एटम से. तो क्लोरीन एलिमेंट के एटम से बना है और हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम से बना है. तो HCl is made up from hydrogen atom and chlorine atom. And if you talking about the base NaOH, which is it is made up from sodium element or sodium atom, and it is made up from oxygen atom and hydrogen atom. अगर बात करें आप NaCl और K2SO4 की, तो K2SO4 या फिर NaCl की बात करते हैं तो जब दो एसिड और बेस, ये हमारा एसिड है, अभी यहाँ पे मैंने लिखा है एसिड का एग्जांपल और यहाँ बेस का एग्जांपल है. तो एक एसिड का एग्जांपल ले लीजिए और एक बेस का एग्जांपल ले लीजिए. तो एसिड का एग्जांपल हमारा HCl हो गया और बेस का एग्जांपल हमारा क्या हो गया? बेस का एग्जांपल हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो मिलकर क्या बनाएंगे? NaCl. तो NaCl हमारा क्या है? सॉल्ट है. तो जब एसिड और बेस आपस में मिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं. और दूसरा क्या बनता है? वाटर बनता है. तो वाटर हमारा एक्चुअली सॉल्ट में न्यूट्रल ही होता है, बट हम पीएच की बात करते हैं तो पीएच वेरी कर जाता है. कभी कभी न्यूट्रल होता है सॉल्ट का पीएच, कभी कभी मोर देन एसिडिक हो जाता है, मोर देन 7 हो जाता है, मीन्स अल्कलाइन हो जाता है. कभी कभी मीन्स कभी कभी सॉल्ट का पीएच जो है बेसिक हो जाता है, कभी एसिडिक हो जाता है, कभी न्यूट्रल हो जाता है. बट वाटर का जो पीएच होता है वो कभी चेंज नहीं होता है अगर इसमें हम कुछ ऐड ना करें. अगर हम इसमें एसिड ऐड कर देंगे तो वाटर एसिडिक हो जाएगा, अगर हम बेस ऐड कर देंगे तो बेसिक हो जाएगा. बट बाय नेचर जो H2O होता है हमारा वो न्यूट्रल होता है. ये बाय नेचर जो सॉल्ट होते हैं, कुछ सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं और कुछ सॉल्ट जो है एसिडिक होते हैं और कुछ सॉल्ट बेसिक होते हैं. इसलिए सॉल्ट को अलग तरह से लिखते हैं. और वाटर की बात आती है तो ये हमेशा न्यूट्रल ही होता है बाय नेचर. तो ये हमारा स्टूडेंट हो गया कंपाउंड. कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं? तो एक मान लीजिए कोई एसिड है, एसिड
ऑयल स्टूडेंट, अगर H2O की बात करें, अगर वाटर मॉलिक्यूल है और इलेक्ट्रोलाइसिस से इसको ब्रेक कर दें, इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर H2O छोड़ दीजिए, आप जो है NaCl को ले लीजिए, NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस कर दीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो हमारा Na+ और Cl- है, तो ये आयन फॉर्म में रहेंगे, और आयन दो तरह से होते हैं, पॉजिटिव आयन होता है, दूसरा नेगेटिव आयन होता है। तो नेगेटिव आयन में हमारा अगर NaCl की बात करें तो NaCl इलेक्ट्रोलाइसिस से ब्रेक हो जाता है, तो दो पार्ट में टूट जाता है, पहला NaCl सोडियम प्लस एंड क्लोराइड माइनस। तो ये हमारा एटम है वो किसके फॉर्म में है, चार्ज के फॉर्म में है। तो एटम दो तरह से एडजस्ट करता है, कंपाउंड के फॉर्म में और आयंस के फॉर्म में। आयंस दो तरीके के होते हैं, सोडियम आयन या फिर प्लस आयन, पॉजिटिव आयन और एंड नेगेटिव आयन।